Good afternoon to all. Welcome to class 12th Economics, National Income and Related Aggregates Unit. And we have discussed yesterday the value added method of calculating the national income, which is also known as the product method, right? Or output method. Before starting the numericals of value added method, I would just give a revision of that method once again. Then I'll start with the numericals of value added method to national income. All right. So I hope you all have somewhere revised the concept at home that how do we calculate the national income from value added method. So let me tell you, for the estimation of national income, we have learned three methods now. We have learned all three methods now for the calculation of national income, for the estimation of national income. As we have done the income method of calculating the national income, we have done the expenditure method also of calculating the national income, and also we have studied the value added method of estimation of national income. When we talk about the income method of calculating national income, I told you that by default domestic income will be calculated, and that domestic income will be calculated, that means NDPFC will be calculated by adding up the three major elements, that is COE plus operating surplus plus mixed income. And once we reach the domestic income, that is NDPFC, we can compute any of the amount which is required to us by using those three interchangeable formulas or three golden rules which I have told you already. Through the expenditure method, I told you we have to add up all these expenditures that are taking place in our two sector economy. So we are considering almost 5 expenditures in total and reaching towards the GDP MP from the expenditure method. So if you remember, from the expenditure method, we were just taking out the private final consumption expenditure, government's final consumption expenditure, gross domestic fixed capital formation, change in stock, and net exports. And by adding up these elements, we were reaching to the GDP MP. And once GDP MP is calculated, we were about to get the लास्ट में हम क्या मिलता था, जैसे GDP MP हो गया तो whatever is required, whatever aggregate is required or asked in the question, we could easily get it through the three interchangeable golden rules. Third and the last method of estimation of national income comes out to be the value added method or the product method or production method. That we have to take up the third method now, that how with the value added method actually we are going to get the value of national income, right? This I have already explained to you yesterday also, that how we are going to get the national income through the value added method, where we have to take the 2 steps only. Ultimately, we have to do the 2 steps only. So once again, I am just revising this concept, value added method, so that once revision would be done, you would be able to do the numericals easily. Value added method, before going for the value added method, first of all there is an explanation that what is value added method. देखिए वैल्यू एडेड मेथड कहता है कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो ना, उसकी टोटल वैल्यू करके आपने नेशनल इनकम निकालनी है. लेट मी गिव एन एग्जांपल वंस अगेन, जो मैंने आपको कल भी दिया था. एक बार लेट मी गिव दैट एग्जांपल वंस अगेन. आई टोल्ड यू दैट सपोज देयर आर 3 फर्म्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि 3 फर्म्स हैं. अब वो जो 3 फर्म्स हैं वो अल्टीमेटली वर्क कर रही हैं, एंड उनके वर्किंग से हमने नेशनल इनकम निकालनी है. कैसे निकलेगी हमें? देखो, मान लो देयर इज अ फर्म ए, एक फर्म है फर्म ए. ये फर्म ए जो है, ही इज द फार्मर. ही इज द फार्मर. इसका मेन काम क्या? ही प्रोड्यूसेस वेरियस गुड्स, राइट? ही प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल एंड ही प्रोड्यूसेस वेरियस गुड्स. अब फार्मर ने क्या किया? फार्मर ए ने कितने का सामान बनाया? फॉर एग्जाम्पल उसने सामान बनाया 1000 रुपीज का, यानी कि 1000 रुपीज का सामान इज मेड बाय द फार्मर. फार्मर हैज मेड द रॉ मटेरियल फॉर 1000 रुपीज. तो फार्मर के लिए यहाँ पे इनकम कितनी होगी? 1000 रुपीज ना, क्योंकि उसने कितना कंट्रीब्यूशन किया इकोनॉमी के अंदर? उसने कंट्रीब्यूशन किया 1000 रुपीज का. अब ये फार्मर ने क्या किया? इस फार्मर ने बी फर्म बी को सेल आउट कर दिया 1000 रुपीज का सामान. यानी कि फार्मर ने वैल्यू कितना ऐड किया था प्रोडक्शन के अंदर? फार्मर ने वैल्यू ऐड की थी प्रोडक्शन के अंदर 1000 रुपीज की, क्योंकि फार्मर ने जो अपने पास चीज बनाई वो 1000 रुपीज की बनाई चीज.
तो अल्टीमेटली उसने 1000 की वैल्यू ऐड की और उसने फार्मर बी को ये प्रोवाइड कर दिया. ही प्रोवाइडेड दिस थिंग टू फार्मर बी, नॉट फार्मर बी बट लेट्स से कि ये जो है ये इसने वीट ग्रो किया था, तो इसने ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बी को प्रोवाइड कर दिया वीट, जो अल्टीमेटली कन्वर्ट करेगी वीट को फ्लावर के अंदर, आटे में, मतलब वो कन्वर्ट कर देगी गेहूं को. ठीक है, अब ये बी जो है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इट कन्वर्ट्स दैट व्हीट इनटू फ्लावर. अब इसने क्या किया, बी ने अल्टीमेटली फ्लावर में कन्वर्ट करने के बाद सी जो बेकरी ओनर था, सी जो बेकरी ओनर था उसको सेल आउट कर दी कमोडिटी. अब उसको कितने में सेल आउट की, बी ने सी को सेल आउट किया सपोज फॉर रुपीज 1500, फॉर रुपीज 1500, यानी कि 1500 रुपीज के अंदर जो है अल्टीमेटली सी के पास चला गया वो फ्लावर 1500 रुपए में. अब बी ने खरीदा कितने का था, बी ने परचेज किया था 1000 का. ठीक, तो बी के लिए ये 1000 इंटरमीडिएट कॉस्ट थी, फॉर बी के लिए ये 1000 रुपीज इंटरमीडिएट कॉस्ट थी, और बी ने अल्टीमेटली बेचा कितने का सी को, 1500 का. तो मुझे बताओ बी ने कितना वैल्यू ऐड किया, बी ने उसमें कितना वैल्यू ऐड किया, 1000 रुपए का तो खरीद लिया था, तो बी ने अल्टीमेटली 1500 का बेच दिया, यानी कि बी का वैल्यू एडेड कंट्रीब्यूशन कितना आया, 500 रुपीज. दैट मीन्स बी हैज कंट्रीब्यूटेड 500 रुपीज एज अ वैल्यू एडेड. ठीक, अब सी कौन था, सी बेकरी ओनर था. सी का काम क्या है, सी का काम है उस फ्लावर को कन्वर्ट करना है बिस्किट्स के अंदर, कुकीज के अंदर. तो सी जो है वो बेकरी ओनर है, इट प्रोड्यूसेस द बिस्किट्स एंड कुकीज, तो ये बिस्किट्स और कुकीज वगैरह बनाता है. ठीक, अब सी ने अल्टीमेटली कुकीज और बिस्किट्स बना के किसको बेचना है, सी ने सपोज अल्टीमेटली बेचना है कंज्यूमर को. ठीक, अब सी अल्टीमेटली कंज्यूमर को बेचने वाला है ये कुकीज और बिस्किट्स, राइट. अब क्योंकि ये कंज्यूमर्स, वैरायटी ऑफ कंज्यूमर्स मार्केट के अंदर होते हैं ना, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया ये कंज्यूमर्स है, ठीक है ना, तो ये कंज्यूमर्स है, तो वैरायटी ऑफ कंज्यूमर्स को सी जो है मार्केट के अंदर जो है अल्टीमेटली जाके बेचने वाला है. ठीक, अब सी जो है कंज्यूमर्स को सेल आउट करेगा सपोज यही चीज कितने की, 2000 रुपीज की. he will sell out this thing for rupees 2000, तो यानी कि कंज्यूमर को सी बेचने वाला है 2000 रुपीज के अंदर. अगर सी जो है 2000 रुपीज के अंदर कंज्यूमर्स को सेल आउट करने वाला है, मुझे बताओ सी ने कितनी वैल्यू ऐड करी, व्हाट वैल्यू इज बीइंग एडेड बाय सी इन द इकोनॉमी, 500. 500 ही सी ने ऐड करी वैल्यू, राइट. सी ने भी 500 रुपीज वैल्यू ऐड कर दी. नाउ द फाइनल प्रोडक्ट कॉस्ट इज 200. तो नेशनल इनकम क्या कहता है, टेक द फाइनल आउटपुट कॉस्ट. तो हम कहेंगे जी 2000 रुपीज इज एडेड इनटू द इकोनॉमी, दिस विल बी टेकन इनटू द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. लेकिन वहीं पर एक और भी मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड. कहता है देखो 3 सेक्टर्स के अंदर जब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के पास सामान गया तो वो कितने का गया, हमने कहा जी वो गया आपका 1000 रुपीज का. तो ठीक है, पहली वैल्यू ऐड हुई 1000 की, दूसरी वैल्यू ऐड हुई 500 की, तीसरी वैल्यू ऐड हुई अगेन 500 की. तो टोटल कितना हो गया, 2000 रुपीज. ये टोटल कितना हो गया, 2000 रुपीज. दिस इज ऑल्सो द वैल्यू एडेड मेथड. That what value we need to take for the national income, we need to take the value for the national income which is ultimately the value added from one sector to another, right. So I told you that two of the things we have to take, two steps we need to take in the value added method. What are these two steps that we need to take? First of all, we have to find out the value of output. Value of output. Now what is value of output? Value of output मतलब total कितने का value production हुआ, ये निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, हम करेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. सबसे पहले हम देखेंगे टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ, वो निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए. तो कैसे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. सेल्स क्या है, कितने का बेच दिया. अब मुझे अगर टोटल प्रोडक्शन निकालना है कि इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ था, तो देखने के लिए ये होगा ना कितना तो बिका, पहले तो वो ले लो, टोटल सेल्स कितनी हुई प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक का मतलब है कि कितना स्टॉक बचा रह गया जो अगले साल यूज हो रहा है, मतलब बना तो पिछले साल ही था ना, और उसका ही हम लोग टोटल निकाल रहे हैं कि टोटल कितना हमने प्रोडक्शन किया था. तो ये निकलता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से, जिसमें चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट. सो वेरी फर्स्ट स्टेप यू नीड टू कंप्यूट इन द वैल्यू एडेड मेथड इज फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट. वंस द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज फाइंडेड आउट, जब एक बार आपने फाइंड आउट कर लिया वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो अगला टॉपिक आपके पास आता है दैट इज वैल्यू एडेड. वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड बोलते हैं उसको, या फिर
हम लोग उसको एक नाम से और जानते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVA MP। नाउ व्हाट इज GVA MP? GVA MP भी बेटा वही चीज है। GVA MP का मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का मतलब है कि आपने इन टोटल मार्केट के अंदर कितनी वैल्यू एड अप हुई, यानी कि कितनी वैल्यू एड अप हुई है मार्केट के अंदर। वैल्यू एडेड एड अप होने का मतलब है कि टोटल कितनी वैल्यू को अल्टीमेटली एड अप किया गया है, विच इज GVA MP, राइट। सो वैल्यू एडेड और GVA MP इज कैलकुलेटेड। ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा जो ऊपर निकाला आपने, वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब निकालेंगे हम टोटल कितना बनाया था मैंने खुद से, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब कि ये वो चीज है जो अल्टीमेटली हमने दूसरों से ली है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज बेसिकली जो चीज हमने दूसरों से ली है। दूसरों से लेने का मतलब है कि ये अल्टीमेटली वो चीज हो गई जो किसी और से ली गई है। सो अगेन बता दूं, सॉरी वो एकदम, हाँ, तो फिर बता दूं दोबारा से कि वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने पहले निकालना है, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, एंड देन वैल्यू एडेड निकलेगा हमारा सेकंड पॉइंट में। वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा? टोटल आपने कितना प्रोडक्शन किया माइनस इंटरमीडिएट मतलब दूसरों से कितना लिया था, तो अल्टीमेटली ये पता चल जाएगा ना कि आपने कितना लिया है। अभी इसी एग्जांपल में दोबारा देखो, 3 सेक्टर्स थे, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी। मान लो फर्म ए इज प्राइमरी सेक्टर, फर्म बी इज सेकेंडरी सेक्टर, फर्म सी इज टर्शरी और सर्विस सेक्टर। फर्म ए के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। फर्म ए ने बी को बेचा था ना 1000 का, तो फर्म ए के लिए जो ए ने बी को सेल आउट किया 1000, दैट इज सेल्स। चेंज इन स्टॉक दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में अल्टीमेटली, तो दैट विल बी ओनली वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी 1000। ठीक। फर्म ए के लिए मुझे बताओ वैल्यू एडेड कितना होगा? उसने कितना वैल्यू ऐड किया? वो निकलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हो गया 1000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो ए के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि ए ने तो सब कुछ खुद ही बनाया है, उसने तो कहीं और से कुछ लिया ही नहीं। तो अल्टीमेटली वैल्यू एडेड भी ए के लिए कितना हो जाएगा? 1000 ही हो जाएगा। ठीक है, हमने निकाल दिया कि भाई GVMP ए का कितना आ गया? 1000 आ गया। याद रखना, GVMP ए का 1000 आ गया। अब बी क्या हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 सेक्टर है तो तीनों का निकालना पड़ेगा अलग अलग। जहां एक होगा वहां सिर्फ एक का निकालेंगे। अब बी पे आओ, बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना होगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो बी ने कितने का सेल किया? बी ने सेल किया अल्टीमेटली 1500 का। हाँ जी तुषार, तीनों सेक्टर्स का अलग अलग निकालना होगा अगर क्वेश्चन में तीनों सेक्टर की इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो। सो बी ने सी को 1500 का सेल आउट किया, तो बी के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया? सेल्स 1500। चेंज इन स्टॉक तो है ही नहीं क्वेश्चन में हमारे अभी, तो सेल्स ही आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गई बी के लिए 1500। लेकिन बी ने वैल्यू एडिड कितना किया? वैल्यू ऑफ आउटपुट 1500 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बी के लिए क्या कुछ इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी है? टेल मी एंड राइट इन द चैट बॉक्स whether there is any intermediate consumption for B. Yes, वरुण भाटिया, दिव्या, तुषार, वरुण आपने थोड़ा गलत, आपने मुझे लग रहा है फाइनल आंसर दिया। यस, प्रियांशी, अनमोल, बिल्कुल है। क्या है? बी ने जो खरीदा था ए से, दूसरी फर्म से जो खरीदा 1000 जो खरीदा था, तो अल्टीमेटली बी के लिए वैल्यू एडिड कितना हुआ? बी ने कितना वैल्यू ऐड किया? बी ने वैल्यू ऐड किया 1500 जो उसने बेचा टोटल, माइनस जो 1000 उसने कहीं और से खरीदा था, तो टोटल अल्टीमेटली 500 का वैल्यू एडिड होगा। कितना वैल्यू एडिड होगा? किसके लिए? बी के लिए होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है बी का वैल्यू एडिड कितना आ गया? 500। तो याद रखो ए के लिए हमने निकाला था 1000, बी के लिए निकाल लिया वैल्यू एडिड GVMP कितना? 500। अब सी की बात करते हैं। सी के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया? सी के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट आया अल्टीमेटली जो सी ने सेल आउट किया। सी ने सेल आउट किया था 2000 रुपीज के लिए, तो सी के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 2000। एंड अल्टीमेटली वैल्यू एडिड कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो मुझे बताओ सी ने इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना किया? सी ने अल्टीमेटली पीछे से कितना लिया? सी ने लिया था कितने का? बोलो जी, 1500 का। 1500 का लिया था ना सी ने, परचेज किया था, तो अल्टीमेटली सी ने वैल्यू कितनी ऐड की? 2000 आगे बेचा, 1500 का पीछे से लिया, तो सी ने कितने का? 500 रुपीज का अपना खुद का वैल्यू ऐड किया। तो सी के लिए वैल्यू एडिड या GVMP कितना आ गया? 500। सो अब देखो, जब भी क्वेश्चन में 3 सेक्टर की इंफॉर्मेशन दी हो, इसी तरह निकालेंगे हम, फर्म ए का, फिर फर्म बी का, फर्म सी का। फर्म ए का GVMP, फर्म बी का GVMP, फर्म सी का GVMP, तीनों का वैल्यू हमने निकाल लिया। लास्ट में आप क्या करना है? लास्ट में हम निकालेंगे GDP MP। लास्ट में क्या निकालेंगे हम? GDP MP। नाउ हाउ विल बी GDP MP कैलकुलेटेड? अब ये GDP MP देखिए कैसे निकलेगा। इफ आई टॉक अबाउट GDP MP, अगर मैं GDP MP की बात कर रहा हूँ कि व्हाट विल बी द GDP MP
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, टोटल प्रोडक्शन, ये कैसे निकलेगी? टोटल प्रोडक्शन आप खुद बताओ मुझे, how will this total production be calculated? This total product GDP will be calculated as sum of sigma, summation of GVA MP, summation of GVA MP, right? So summation of GVA MP will be calculated. Now how this GVA MP will be calculated? GVA MP gross value added at market price, मतलब तीनों का सम कर दो, तीनों का जीवीएमपी का सम कर दो, तीनों सेक्टर का वैल्यू एडिड सम कर दो, आपके पास आ जाएगा जीडीपी एमपी। अब आप मुझे बताओ, एक बार आपके पास जीडीपी एमपी आ गया, क्या कोई और एलिमेंट आप नहीं निकाल सकते? वी कैन कंप्यूट एनी एग्रीगेट, हम कुछ भी निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी, एनएनपीएमपी, जीडीपी एमपी, जीएनपीएफसी, जीएनपीएमपी, कुछ भी निकल जाएगा बाय टेकिंग आउट ऑल दीज थ्री गोल्डन रूल्स टुगेदर। आई होप नाउ दिस मेथड इज क्लियर टू ऑल। हाँ जी राजन, सेम यही करेंगे हम, GVMP of BC ABC sum करेंगे, yes. So it's clear to all value added method. I hope it's clear and there is no doubt. Shall I continue with the example or shall I revise it once again? Tell it once again. Tell me if any doubt is there. Fine. Okay, moving further. So आगे से ध्यान रखना है आपने, आगे से प्लीज ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर, whenever in any question it is given, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर इट इज गिवन, द इंफॉर्मेशन इज गिवन रिलेटेड टू वेरियस फर्म्स, वेरियस सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर, तो आपने ऐसे अलग अलग सेक्टर का करके निकालना है ना। लेकिन अगर अलग अलग सेक्टर का नहीं दिया हुआ, if the information is not given for the different sectors, in that case there is no need to take that, you just have to go for the one sector only। फिर तो सिर्फ दो ही स्टेप करने हैं आपने, वन एक ही सेक्टर के लिए। Kashish, tell me which point, in which point you have doubt, I will repeat that point. Tell me in which point you had the doubt in this. So let's continue with the example. GDP MP, GDP MP कशिश, जब तीनों सेक्टर्स का हमने अलग अलग वैल्यू एडिड निकाल लिया, तो तीनों सेक्टर्स के अगर हम इन वैल्यू एडिड को, जैसे यहाँ 1000 था, यहाँ पे 500 था, यहाँ भी अगेन 500 था, तो अगर हम इन तीनों वैल्यू एडिड को सम कर दें, वैल्यू एडिड को जीवीएमपी तीनों को सम कर दें, वी विल गेट जीडीपी एमपी। हमारे पास जीडीपी एमपी कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। Once we add up all these three things together, we will simply get the GDP MP. And once we will get the GDP MP, जैसे GDP MP आ जाएगा, we can compute any of the aggregate that we want. So moving for the next thing, but before moving for the next thing, again एक बार जरा इसको एक्सप्लेन करवा देते हैं जरा दो बच्चों से, इन्हीं दो बच्चों से। एक पहले जरा नमन जैन, बी रेडी, एंड देन हर्षिता, यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन। Naman, over to you. Yes, sir. Kindly start speaking for this. I'm in mute. Naman, you are unmuted, I think, but there is Yes, some sir. problem at your mic end. No, sir. Hello, hello. हाँ जी, बोलो बोलो। Yes, sir. क्या बोलना था? एक मिनट वापस बोलना एक बार। Value added method, Naman. हाँ सर, वैल्यू एडेड मेथड मतलब एक एक जो सेक्टर है प्राइमरी, उस सेक्टर का जो भी एड प्राइस है एडेड जो होके जो बना के पूरा फाइनल कंज्यूमर तक जाता है, वो प्राइस फिर उसको हाँ, मतलब सम ऑफ वैल्यू एडेड मेथड को फिर जीडीएमपी में होता है इसको सम okay. ऑफ वैल्यू। So what two steps we have to follow in while calculating the national income from value added method? What are the two steps that we need to take? वो add all the वो जितने भी मतलब हर सेक्टर के जितने भी वैल्यू एड Value of जिसने output. हाँ वो सबको ऐड करके लेना। So value of output we have to take for all these sectors, and once value of output is computed, then the next step is getting the value of value added. And how value added is taken?
GDMP. वैल्यू एडिड कैसे निकलेगा? GVMP. GVMP कैसे निकलेगा? Taking out the formula value of output minus intermediate consumption, right? Okay, so now moving further to some other student. Harshita, I think I to ask you to speak on this, right? Harshita, no, before Harshita, I would like to go to Nishtha. Nishtha मुझे दिख गई. Nishtha, unmute please. Unmuted. बोलो. Value added method थोड़ा सा explain करो जरा. Yes, sir. The value added method is also known as total output method or production method. To find national income in this method, we need to follow just two steps. First is we need to calculate value of output, which can be calculated by adding sales and change in stock. Then we have to find out value added, or also known as GVAMP, which can be find out by value of output minus intermediate consumption. And after that, GVMP of all the firms will be find out given in the question. Matlab, if a question has given 3 firms, then we have to find out different GVMP of all the 3 firms, and by adding all the GVMP, we will be getting GDPMP. And with GDPMP, we can find out any other aggregate by using 3 golden rules. Very good. So let's go to Harshita, and then I'll go for the next numericals. Harshita, you're unmuted. So value added method is also known as production method and total output method. To calculate national income by using value added method, we have to follow only 2 steps. First, we have to calculate value of output, that is equals to sales plus change in stock. Here change in stock is closing stock minus opening stock. Second step is to calculate value added or gross value added at market price, GVAMP, that is value of output minus intermediate consumption. Once we have calculated GVAMP separately of all the firms given in the question, we have to add them, and by adding GVAMP, we will get GDPMP, and once we have get GDPMP, we can easily calculate any other aggregate. Can you tell me what is intermediate consumption? What does it refers to? Intermediate consumption is amount which one firm is purchasing from other firm as raw material to be used in production. And it is used in deducting and forgetting the value added or GVMP. And how do we get the value added? We simply get it from value of output minus intermediate consumption. All right. चलो अब अपने आप को unmute कर लो, and I'm moving for the examples now. You can see the question that came in the sample question paper 2019 only for 3 marks. The question says, first part, question कहता है, in an economy the following transactions took place. In an economy, the following transactions took place. The transaction 1, if we are talking about, is basically about that firm A sold to firm B goods of 80 crore, to firm C rupees 50 crore, and to households rupees 30 crore, and goods of value rupees 10 crore remain unsold. Now B part कहता है, firm B sold to firm C goods of rupees 70 crore, to firm D rupees 40 crore, and goods of rupees value of rupees 30 crore were exported. बाहर export किए, बाहर बेचे, and goods of value rupees 5 crore was sold to government. So having a look at the question, we can simply conclude that it is basically the information is given about firm A and firm B, right? In the part 1, we can see that firm A has sold its goods to various firms, various other firms, even to households, even to some unsold stock also is there, that is change in stock. Then firm B, second part mein is given that firm B has also sold various goods to different firms of different value, even some exported, even sold to government. Question is saying value, calculate value of output of firm A and firm B. सबसे पहले तो first point ही हमने निकालना है दोनों firms का value of output. And we already know that how value of output is concluded or how it is calculated.
When we say value of output, how it is calculated? We simply say that value of output is sales plus change in stock. यही कह रहा ना हमने अभी, sales plus change in stock. So if we talk about firm A, now write in the chat box and tell me that what are the total sales by firm A, because we are taking the total sale of course. So sale plus change in stock, value of output of firm A we will get. तो पहले A के लिए solve करते हैं दोनों steps. तो A के लिए पहला step निकालो, value of output of firm A compute करो and tell me. Of course that is total sale plus change in stock. तो अगर हम इसकी तरफ देखें तो we simply get that कि A ने ultimately जो बेचा, जो उसने सेल आउट किया, what we are getting, A ने 80 करोड़ का सेल आउट किया फर्म B को, A ने 50 करोड़ का सेल आउट किया फर्म C को, A ने 30 करोड़ का सेल आउट किया हाउस होल्ड्स को. तो what are the total sales? Of course that is 70, that is 80 plus 30 plus 50, right? What we are getting? We are getting 160 crores. ये आया हमारा सेल प्लस चेंज इन स्टॉक ऑल्सो. चेंज इन स्टॉक मीन्स द स्टॉक विच रिमेन्स अनसोल्ड, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, दैट इज गिवन इन क्वेश्चन 10. तो अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ आउटपुट फर्म ए के लिए कितना आ गया? 170 करोड़. ऑलराइट, इसी तरह वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर फर्म बी भी निकालो सेकंड पार्ट में, क्योंकि उसने ये भी पूछा है बी के लिए भी. सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, 70 करोड़ सेल किया, फिर 40 करोड़ सेल किया, फिर 30 करोड़ सेल किया, फिर 5 करोड़ सेल आउट किया, which means total sales कितनी होगी? 145 crores. And there is no change in stock given in the question for B. So ultimately यही उसका value of output हो गया B के लिए. पहला स्टेप हमने दोनों का निकाल लिया. सेकंड में उसने बोला वैल्यू एडेड बाय फर्म बी निकालो, कि फर्म बी ने कितना वैल्यू ऐड किया. कोई बात नहीं, बी के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था? 145, है ना. बी के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट था 145, ठीक. और अब बी के लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी होगी मुझे बताओ. बी के लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी होगी? तो जरा फर्स्ट पार्ट में देखो, हमें दिख रहा है सीधा सीधा बी के लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी है. ए ने बी को सेल आउट किया था 80 करोड़ का. क्या इसका मतलब ये नहीं है कि बी ने ए से खरीदा है 80 करोड़ का? एक ही तो बात है. A sold to B for 80 crores also means that B purchased from A 80 crores. That means 80 crore is ultimately the intermediate cost to B. That means which will be reduced from its value of output 80 crore. Ultimately we will get the value added 65 crore for B, and this is your answer. Is it clear now? Any doubt in this question? That how we have to go for the value of output and value added. So all clear? You can show your thumb like I am showing my thumb. देखो आप जरा. This way also you can show your thumb if it is clear. Okay, fine. सक्षम इज आस्किंग सर सी का वैल्यू एडिड निकालना होगा तो कितना माइनस होगा. ठीक है सक्षम, आई जस्ट एक्सप्लेन. एक बार दोबारा मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ. अगर सी का निकालना हो तो कितना होगा. पहली बात तो सी के लिए देखो, सी के लिए उसने हमें सेल्स दी है, सी के लिए उसने हमें सेल ही नहीं दी हुई. तो इस दिस क्वेश्चन जस्ट आस्क अबाउट फर्म ए एंड फर्म बी. उसने हमें बोला ही नहीं कि सी ने सेल कितने का दिया, उसने बस इतना बोला बी ने सी को सेल किया. तो सी का तो सेल्स अभी फिलहाल तो 0 है ना. लेकिन सी के लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी होगी? अगर उसने लिखा है फर्म बी सोल्ड टू फर्म सी 70 एंड ऑल्सो फर्म ए सोल्ड टू फर्म सी 50, तो सी के लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी आ गई? 70 प्लस 50 दैट इज 120. तो यानी कि सी के लिए सेल 0 हो जाएगी और उसका इंटरमीडिएट कॉस्ट आ जाएगा सी ने कितना खरीदा दूसरों से, है ना. तो ए ने बेचा था सी को 50 का और बी ने बेचा था सी को 70 का. तो अल्टीमेटली 120 उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट आ जाएगी, है ना. तो सी के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट वैल्यू एडेड कितना हो जाएगा? -120, क्योंकि उसके लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट 0 था और इंटरमीडिएट कॉस्ट -120 हो गई बीच में, है ना. तो ये अभी जो इन्फॉर्मेशन है इसमें दी नहीं हुई थी सी की एक्चुअली. अभी इसमें सिर्फ इसलिए ए और बी का ही पूछा हुआ था. ठीक है, चलो मूविंग फर्दर. नेक्स्ट न्यूमेरिकल. चलो भाई, नेक्स्ट न्यूमेरिकल यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. ये रहा आपके सामने.
चलो भाई स्टार्ट करो इसका सॉल्यूशन अपने स्क्रीन अपने उस पे बुक्स वगैरह अपनी नोटबुक पे पेजेस पे सॉल्व करो एंड शो मी ऑन द वेबकैम, और मुझे वेबकैम ऑन करके दिखाओ हाउ यू हैव सॉल्व दिस। चलिए सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, मैं आपको बता देता हूँ व्हाट यू हैव टू डू इन दिस। Question says from the following data calculate the value added by firm A and firm B, right? The data given is closing stock of firm A 20, closing stock of firm B 15, opening stock of firm A, opening stock of firm B, then sales by firm A, then sales by purchases by firm A from firm B, purchases by firm B from firm A, domestic sales by firm B, import of raw material by firm A, export by firm B. This is all given to us. अब देखो, I can see that A and B, two firms data is given. I have been given the data for firm A and for firm B. जरा यहाँ पे आपको साथ साथ सॉल्व करके दिखाता हूँ सा। A और फॉर्म बी का हमें डाटा दिया हुआ है, तो मैं आपको फॉर्म ए पहले सॉल्व करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सी आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्म ए फर्स्ट। इफ आई टॉक अबाउट फॉर्म ए, तो निकालना है हमें ऑफ कोर्स वैल्यू एडिड दोनों फॉर्म का, तो पहले फॉर्म ए का अलग से निकालते हैं हम वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब देखो फॉर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना, इससे निकलेगा हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट विच इज इक्वल्स टू सेल्स। बताइए ए ने कितनी कितनी सेल की, टेल मी द सेल बाय फर्म ए। बोलो जी, सेल बाय फर्म ए। आप देखो यहाँ से बोल रहा है हमें सेल बाय फर्म ए, सीधा सीधा दिया 300, 300 तो एक वैल्यू हमें सीधा सीधा मिल गई, तो 300 लिख लिया हमने, सेल बाय फर्म ए 300, राइट, प्लस इज देयर एनी अदर सेल, बताओ जरा क्या फर्म ए की कोई और सेल है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज बाय फर्म ए, परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए। डू यू थिंक दिस इज गिवन परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए? बी ने फर्म ए से खरीदा, बी ने फर्म ए से खरीदा, यानी कि ये भी तो सेल बाय फर्म ए ही है, लेकिन क्या हमें इसको लेने की जरूरत है अलग से जब हमें डायरेक्ट दिया हुआ सेल्स बाय फर्म ए? वी शुड नॉट टेक इट वंस अगेन, व्हाई, बिकॉज इन टोटल दिया हुआ है सेल बाय फर्म ए। अगर लिखा होता ना सेल बाय फर्म ए टू फर्म बी, सेल बाय फर्म ए टू हाउस होल्ड, सेल बाय फर्म ए टू गवर्नमेंट, सेल बाय फर्म ए टू सी, तो हम अलग अलग इस तरह अगर दिया होता देन वी हैव टू ऐड अप, बट हमें डिफरेंटली नहीं दिया, हमें कंपाइल करके दे रहा है सेल बाय फर्म ए, वी विल टेक ओनली दैट सेल 300, ठीक। उसके बाद लो जरा चेंज इन स्टॉक, नाउ टेल मी द चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 20, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 5, तो कितना आ गया 15 लिख दूं सीधा सीधा मैं, है ना, सो आई हैव रिटन 15 डायरेक्ट, तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाता है, वी गेट द आंसर हियर, एंड व्हाट आंसर वी आर गेटिंग, वी आर सिंपली गेटिंग द यस 315, ठीक। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट आया, माइंडेड दिस इज नॉट द वैल्यू एडेड, वी हैव टू स्टिल फाइंड आउट द वैल्यू एडेड, तो निकालो इसका GVAMP ऑफ फर्म ए, निकाल लो जरा, which will be value of output 315 minus intermediate consumption. Now tell me what is intermediate consumption. Saksham is asking sir 15 कहाँ से आया? Okay, Shubhangi also. Shubhangi and Saksham 15 हमें देखो चेंज इन स्टॉक लेना था ना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक जो मैंने बताया था, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए फर्म देखो दिया हुआ है 20 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ए का 5,
तो क्लोजिंग स्टॉक 20 माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ 5, तो 15 आ गया ना, तो वो चेंज इन स्टॉक हो गया, क्योंकि चेंज इन स्टॉक अगर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ तो उसका फॉर्मुला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो उसके अकॉर्डिंगली वी सिंपली गेट दी 15, वो मैंने ऐड कर दिया और हमारे पास आ गया 315 वैल्यू ऑफ आउटपुट। नाउ GVAMP ऑफ फर्म ए निकालो, which is value of output minus intermediate consumption. Now tell me what is intermediate consumption of firm A, जल्दी बताओ, सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, 3 minutes। GVAMP of firm A, intermediate consumption of firm A बताइए कितना आएगा आपके सामने, यानी कि फर्म ए ने अगर कहीं से कुछ खरीदा है तो बोलो, anything which is purchased by firm A, GVAMP of firm A, yes, purchases by firm A from firm B लिखा हुआ है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक तो आपकी हो गई 100 रुपीज, डायरेक्ट 100 रुपीज आपका हो गया ना, क्योंकि 100 रुपीज जो है फर्म ए ने खरीदा है बी से, तो ये फर्म ए की इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। इसके बाद देखिए और कहीं पे फर्म ए ने कुछ लिखा, यस, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म ए ने इंपोर्ट किया रॉ मटेरियल, वो भी तो फर्म ए का इंटरमीडिएट ही है, तो वो ऐड कर दो इंटरमीडिएट के अंदर, 50 और ऐड कर दो, ठीक। तो हमारे पास सीधा सीधा आ जाता है क्या, वी सिंपली गेट GVAMP ऑफ फर्म ए की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सीधा सीधा आ गया 315 minus 150 and final answer I'm getting is 165. This is my answer. This is the answer that is GVAMP of firm A. ठीक, इसी तरह GVAMP of firm B का कोई डाउट बताओ मुझे, अगर यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज। सक्षम क्या नहीं समझ में आया प्लीज बताओ, which point you didn't understand? 315 करोड़ के बाद सक्षम पहले स्टेप में हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया फर्म ए का, अब सेकंड में हम लोग वैल्यू एडिड निकाल रहे हैं। वैल्यू एडिड कैसे निकलेगा, वैल्यू एडिड निकल रहा है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, जो ऊपर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला। वैल्यू एडिड कैसे निकलता है, वैल्यू एडिड को हम GVAMP भी बोलते हैं ना, तो वैल्यू एडिड कैसे निकलेगा, इट विल बी अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, जिसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट था 315 जो ऊपर निकाला। अब इंटरमीडिएट कॉस्ट मतलब फर्म ए ने बाहर पीछे से किसी से कुछ लिया है, तो यहाँ देखो फर्म ए ने लिया है ना, बी से खरीदा 100 का रॉ मटेरियल, और साथ में फर्म ए ने इंपोर्ट भी किया 50 रुपीज का, तो वो इंपोर्ट भी आ गया, 150 का टोटल आ गया, तो 165 जो अल्टीमेटली आपका आ गया वैल्यू एडेड GVAMP, ठीक। अगर मान लो यहाँ पे टोटल एग्जैक्ट से दिया होता इंटरमीडिएट कॉस्ट बाय फर्म ए, तो हम सीधा सीधा वही ले लेते, कोई पार्ट्स लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे पार्ट्स दिए हुए हैं, डायरेक्टली इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं दिया, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दी पार्ट्स। ऑलराइट, सो I'll take tomorrow some more numericals and I will send the value added assignment also by today, so you end automatically. I hope this is clear to all. जो भी डाउट है you can ask me on WhatsApp also, आप मुझे पर्सनल WhatsApp कर सकते हो। Yes मिताली संदीप गर्ग, you all have to buy